Hello my dear students, my name is Dr. Vaishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Group. Thank you so much first of all for giving me this views in thermodynamics chapter, and on your request I'm just uploading a video based on the numericals and questions of thermodynamics. So let us start with this chapter and its questions. Initially we'll discuss here in this chapter the topic wise questions. Like first we have studied about the basic concepts like system, surrounding. So my question is, what type of system? You need to find out the type of system. I'm giving you various examples. Like example is, if I talk about tree, is it open system, closed system, or the isolated system? Yes, it is open system. Similarly, animals, open system. When I talk about tea, which is placed in an open cup, then it is again open system. But when this tea placed in a closed vessel or a cup covered with a lid, then it becomes closed system. Then tea placed in thermos flask, it becomes isolated system. So this is how we can easily identify what type of system we have. Next question we have is to find out and separate the extensive and intensive properties. So these are some important theoretical questions that you may have in your paper, intensive and extensive properties. So let us move to second question. Extensive and intensive properties. You are supposed to find out and separate the various properties given to you and into extensive and intensive. So extensive, again I'm saying it depends on the amount. If I change amount, it changes. It is independent. If I change the amount, there will be no change in the value. So it is independent. Suppose I ask you temperature, I ask you pressure, I ask you boiling point, I ask you melting point, refractive index, all these things. So simple, कैसे ध्यान रखें? जिनकी वैल्यूज फिक्स है, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, वो सब क्या है? इंटेंसिव. They are independent. Like if I ask you what boiling point of water, आप एक चम्मच पानी लें, एक कटोरी पानी लें, एक गिलास पानी लें, एक टब पानी लें, boiling point तो 100 डिग्री रहेगा, provided it is pure. The same is with melting point, fix रहेगा, refractive index fix रहेगा. So जो values fix हैं, जो change नहीं हो रही amount के साथ, वो intensive है, और जो change हो रही हैं, वो हमारी क्या होगी? Extensive. So if I talk about the temperature and pressure, they are also will not change. टेम्परेचर प्रेशर कैसे चेंज नहीं होगा? सपोज यू हैव अ कंटेनर, मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था, यू हैव सम लिक्विड इन इट, इसका टेम्परेचर टी है, मैंने इसको हाफ कर दिया, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा. आपने इसमें से एक गिलास पानी निकाल लिया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव. प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव. इट रिमेन्स फिक्स्ड. सो चेंज क्या हो रहा है? चेंज होता है हमारा वॉल्यूम, चेंज होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स. So they are extensive. बाकी सब क्या है? Intensive. Let us move to next question. Can we find the absolute value of internal energy? Internal energy की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So मैंने आपको बताया था, U cannot be calculated because it is sum of various forms of energies. It is sum of different types of energies. So exact value of U cannot be calculated. But we can find the change in U. एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी कैन फाइंड. व्हाई वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू? वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन अ सिस्टम. मे बी सम आर सो नेग्लिजिबल इट इज नॉट इजी टू फाइंड एक्सपेरिमेंटली. यू को एब्सोल्यूट वैल्यू को तो हम क्या करते हैं? हम डेल्टा यू निकालते हैं. चलिए डेल्टा यू की बात करते हैं. एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है किसी सिस्टम का, और उस सिस्टम में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो सिस्टम है जिसमें एक कंडीशन मैं आपको देती हूँ. व्हेन नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, बट सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. एंड माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सो हमें पता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू हमें पता है 0 है, डब्ल्यू हमें पता है पॉजिटिव है. सो आंसर क्या आ गया? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू विथ पॉजिटिव साइन. एंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स. अब हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सिंस नो हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, सो इट शुड बी अ डायबेटिक वॉल.
हीट चेंज 0 होता है डायबिटिक में. गॉट इट. सेकेंड, इसी में ही अगर मैं आपसे पूछूं, सेकेंड पार्ट सेज नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. बाहर जा रही है, बाहर जा रही है मीन्स नेगेटिव, एक्सोथर्मिक हो गया विच इज नेगेटिव. क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड इट इज गिवन टू द सराउंडिंग. सो what is the change in internal energy and what type of wall do we have in the system? So change in internal energy का formula again delta U is equals to Q plus W. This time W is 0 but Q is negative. So can I write delta U is equals to minus of Q? ठीक है ना. अब heat transfer हो रही है means walls कैसी होंगी? Conducting walls जो heat को transfer करे. So यहाँ heat transfer नहीं हो रही थी तो कौन सी wall थी? Adiabatic. यहाँ heat transfer हो रही है. Simple walls कौन सी? Conducting walls, diathermic walls. So we have conducting walls. Let us move few more questions and let us move and discuss few more questions. So when we talk about another type, we say that one more question, find change in internal energy again when W amount of work is done by the system. So by the system होते ही W क्या हो जाता है? Negative. On the system positive, तो by the system negative. And Q amount of heat is supplied to the system. That means system ले रहा है and when system is taking Q becomes positive. ठीक है. So delta U क्या हो गया? Delta U is plus Q minus W. So Q minus W हुआ means heat का भी change हो रहा है, work भी हो रहा है. ठीक है. So heat is taken out. System हमारा heat is given to the system. हमारे पास heat मिल रही है, system heat को absorb कर रहा है और वर्क भी डन हो रहा है. अब वर्क डन हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास क्लोज सिस्टम है. वॉल्स नहीं पूछी आपसे, टाइप ऑफ सिस्टम पूछा है. सो व्हेन इट्स बीन आस्क्ड टाइप ऑफ सिस्टम आइदर ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड. आइसोलेटेड होगा नहीं क्योंकि हीट का चेंज हो रहा है, तो इट शुड बी आइदर ओपन और क्लोज. वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है. वी नीड सम पिस्टन विद सम वॉल्स ऑन इट, सो इट मस्ट बी क्लोज्ड. ओके, ठीक है जी. तो एक और क्वेश्चन करते हैं इंटरनल एनर्जी पे. आपको फाइंड आउट करना है इंटरनल एनर्जी चेंज. फर्स्ट केस, व्हेन सिस्टम एब्सॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट. एब्सॉर्ब मतलब पॉजिटिव हो गया. एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क. काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सो क्यू तो हो गया प्लस 15 बट W हो गया बाय द सिस्टम, सो इट इज -5 kJ. मैंने आपको पहले भी बताया था जो आ रहा है केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव है, जो जा रहा है वो नेगेटिव है. वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क पे काम हो रहा है, वर्क पे काम आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव. हीट आ रही है पॉजिटिव, हीट जा रही है नेगेटिव. बस आपको यही ध्यान रखना है. सो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. Q आपका प्लस 15, W आपका -5. आंसर आपके पास आ गया 10 किलो जूल. यूनिट सेम है. ठीक है. इसी में एक और पार्ट करते हैं. आपको डेल्टा यू निकालना है बट द थिंग इज आपको 5 kJ वर्क डन ऑन द सिस्टम है. ऑन द सिस्टम मीन्स पॉजिटिव वर्क डन एंड 15 kJ हीट इज गिवन आउट ऑफ द बाय द सिस्टम, सो इट इज -kJ. बाहर जा रही है ना, माइनस आएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव. ध्यान रखें, आपका वॉलेट है ये एक तरह से. आपके पास पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहे हैं. आपके पास जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहे हैं. बस आपको यही ध्यान रखना है. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. Q इज -15, W इज +5. वैल्यू पुट कर दीजिए. आपके पास आंसर आ गया -10 kJ. इट मीन्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. -10 kJ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की. किस फॉर्म में डिक्रीज हो रही है? किस फॉर्म में? हीट बाहर जा रही है. यहां इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हीट अंदर आ रही है. सो नॉट ओनली हीट, इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो. तो रेजिस्टेंस जो हमारा, रिजल्टेंट जो आया हमारा, वो इंटरनल एनर्जी को डिसाइड करेगा वेदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था 3 चीजों से ही चेंज होती है. या तो हीट से, अमाउंट ऑफ हीट से चेंज होती है, वर्क से चेंज होती है, या आपने कोई मैटर ऐड किया या कम किया. दीज 3 थिंग्स डिसाइड्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है जी. अब हम इंटरनल एनर्जी पे आ गए हैं. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वर्क पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. वर्क डन. सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कब? व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन अ बल्ब. बल्ब मीन्स एक फिक्स हमने कंटेनर ले लिया, हुज कैपेसिटी इज 10 लीटर. यानी आपका जो वॉल्यूम है एक बल्ब का वो है 10 लीटर.
at 1 bar pressure is 1 bar, is allowed to enter into an evacuated bulb of 100 liter capacity. वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसको हमने आइडियल गैस को 100 लीटर कैपेसिटी लिया. So question is 1 mole of ideal gas contained in a bulb of 10 liter capacity at 1 bar pressure is now allowed to enter into an evacuated bulb of 100 liter capacity. Let me write V1 and V2. So basically आपको निकालना है W और हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी. पी कौन सा लेंगे, पी एक्सटर्नल लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है. अब क्या है, ये इवैक्यूएटेड बल्ब में हो रहा है, मींस अगेंस्ट वैक्यूम है. अगेंस्ट वैक्यूम में मींस आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0. अब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो बच्चों W भी 0 हो गया. 0 इंटू एनी नंबर इज 0. ओके. सो सिंस इट इज टेकन in an evacuated bulb, it means it is nothing but the work done against vacuum. So हम उसमें P external 0 लेते हैं and thus work comes out to be 0. ठीक है. चलिए अगर हम कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दें, कंडीशन हमने चेंज की और मैंने कहा कि अब आपके पास 1 मोल गैस है और उसको एक्सपेंड किया. इट इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर. एक्सपेंशन हो गया. आपके ऐसे कंटेनर था, ये 1 लीटर था, थोड़ी देर में एक्सपेंड हो गया 5 लीटर तक पहुंच गया. पहले इतना था, अब इतना हो गया, एक्सपेंशन हो गया. सो इट इज एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार. ठीक है. एंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. So question is, you have to find out the work done as well as internal energy change if the process is carried out adiabatically. Adiabatically means आपके Q है 0. So when we talk about this formula for work done is equals to minus P delta V. P क्या है हमारा external pressure? Constant external pressure हमें क्या दिया हुआ है, 1. So what I write is minus 1. Then delta V. Delta V is change in volume. 5 minus 1. So it comes out to be 4. यूनिट क्या है, लीटर, एंड इसकी बार, यूनिट लीटर बार. यूनिट बार लीटर बार को अगर हम जूल्स में करें तो ये हो जाएगा इनटू 100, इट बिकम्स जूल्स. ये आपको यूनिट दी हुई है, कन्वर्जन दिया हुआ है. सो आपके पास आंसर क्या आया, माइनस 400 जूल्स. राइट. अब अगर आप इसमें कहें कि आपका डेल्टा यू क्या होगा, सो वी नो डेल्टा यू इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू हमें 0 मालूम है, डब्ल्यू हमारा आ गया, तो डेल्टा यू हो गया माइनस 400 joules. This is how we can calculate the internal energy and work done. So I hope आपको ये चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी. चलिए. Now, one more question is, and the question is, CO, carbon monoxide, is allowed to expand isothermally. Isothermally means हमारे पास delta T 0 है, and reversibly from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin temperature, and work आपको जो मिला है, work obtained is 4.754 kilojoule. You're supposed to find the number of moles of CO, carbon monoxide कितनी चाहिए. So question is, carbon monoxide को expand किया हमने isothermally and reversibly. When we have this isothermal reversible expansion, हमारे पास जो W का फॉर्मूला होता है वो होता है -2.303 nRT log of V2 by V1. So V1 we know 10, V2 we know 20. n नंबर ऑफ मोल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं. R आपको पता है, R is 8.314, T is 300 Kelvin temperature, W we know. Put all these values and find the value of n. So ये वाला फॉर्मूला W का आपको कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में आपको यूज करना है. When we have this condition, that means the isothermal and reversible. ठीक है. Let us consider one more question. Question says you have 2 moles of ideal gas. Ideal gas. Initially at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Now this gas is compressed isothermally
and reversibly compress किया है. Compress means work is done on the system till final pressure P2 comes out to be 10 atm. ये initial था P1. Let me write this is P2. You are supposed to find Q, W and delta U in this case. आपको तीन चीजें निकालनी है, Q, W and delta U. So again we have this condition isothermal reversible. So use this formula. W is equals to minus 2.303 nRT log P1 upon P2. इसको यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा that is W. Because P varies inversely with V. So we'll be having this formula V2 by V1, otherwise P1 by P2, which varies inversely with V. Now, second thing is, हमने W निकाल लिया, हमें डेल्टा U निकालना which is Q plus W. तो पहले हम Q की बात कर लें. What is Q? What is Q? So Q अगर हम बात करें तो Q के लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दी हुई. Let us move to delta U. Delta U is equals to Q plus W. हमें डेल्टा यू एक और चीज से पता है एंड दैट इज आइसोथर्मल. आई टोल्ड यू इन द थ्योरी क्लास दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोथर्मल. सो इफ दिस इज 0, W इज नोन टू अस. कैन आई कैलकुलेट Q? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस W. So this is how we can calculate the value of Q, W and delta U. आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या दी है. यूज द फॉर्मूला ऑफ W and delta U accordingly. So these are certain questions based on the work done and internal energy. Let us move and discuss the next topic, that is enthalpy. आई होप बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरह से क्वेश्चन यूज करना है, सॉल्व करना है. When we talk about enthalpy, we say that enthalpy means क्या है? Enthalpy is nothing but the heat content of the system at constant pressure. ये हमने पढ़ा था. It is represented by delta H and it is equal to delta U plus P delta V. ये हमने पढ़ा था. And it is thermodynamic property, so it is a state function. If I ask you this relation and I ask you a question, when these two will be equal, under what conditions these two can become equal? ये theory में भी मैंने आपको पढ़ाया था. बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. सो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये जो ऑप्शन है ये हमारा जीरो हो जाए. सो एक कंडीशन है जब डेल्टा वी जीरो हो जाए. दूसरी कंडीशन है हम पी डेल्टा वी को डेल्टा एन आर टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, डेल्टा एन आर टी भी लिख सकते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हमारा डेल्टा एन जीरो तो भी हमारा डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो हो सकता है. सो बेसिकली अगर हमारा डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी जीरो कब होगा? डेल्टा वी जीरो होगा जब हमारा क्लोज्ड वेसल है. डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल. क्लोज वेसल मीन्स वॉल्यूम में कहीं कोई चेंज ही नहीं हुआ. या फिर डेल्टा एन जीरो मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स सेम हो. या फिर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें गैसेस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो. सो तीन कंडीशंस हो गई, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एन जीरो, कोई गैस इन्वॉल्व ही नहीं हो रिएक्शन में. सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस. Let us do next question based on this enthalpy, and this is from your NCERT. The question says you have water vapor which is assumed to be perfect gas. Okay, water vapor assumed to be perfect gas. Molar enthalpy change at 1 bar pressure and molar enthalpy change at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule पर मोल. सो बेसिकली ये 41 किलो जूल क्या हुआ? ये आपका मोलर एंथैल्पी चेंज है. दैट मीन्स डेल्टा एच. एंथैल्पी चेंज यही होती है किसी रिएक्शन की. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज. दो कंडीशंस. व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल लिक्विड वाटर इज वेपराइज्ड टू at 1 bar pressure, is vaporized, this is 1 mole, is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस. यानी इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया हमने. वेपर में कन्वर्ट करने का मतलब हमने इसको गैस बना दिया. क्वेश्चन समझ गए? कंडीशन दी है जब वाटर को इवेपोरेट किया वेपर्स में अंडर दीज कंडीशंस. और सेकंड केस दिया हुआ है आपको व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस. आपके पास वाटर है लिक्विड में एंड इट चेंजेस इनटू आइस 1 मोल. सो हम दोनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस व्हेन वी टॉक अबाउट द वेपोराइजेशन. इन वेपोराइजेशन वी से दैट वाटर लिक्विड changes into water gas.
दैट मीन्स डेल्टा एन क्या हो गया, डेल्टा एन वी कंसिडर नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट गैशियस एक ही है 1 माइनस 0, सो इट कम्स आउट टू बी 1. हमें डेल्टा यू निकालना है. फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और प्लस डेल्टा एन आर टी. तो हम डेल्टा एन आर टी के टर्म्स में बात करेंगे बिकॉज टेम्परेचर हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, आर हमें पता है. सो आई कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी. डेल्टा एच मुझे पता है 41 गिवन है, माइनस डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन इज 1 मोल इंटू आर इज किलो जूल में है, हमारी वैल्यू होती है जूल्स में 8.314. कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय टी. टी कितना दिया हुआ है हमारा, टी इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो 273 केल्विन 0 डिग्री के लिए होता है, 373 केल्विन 100 डिग्री के लिए हो गया. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू. डेल्टा यू आ जाएगा आपका फर्स्ट केस. सेकेंड केस है हमारा वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड. तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं पे कोई गैस इन्वॉल्व है. अब गैस इन्वॉल्व नहीं है तो डेल्टा एन 0 हो गया. अभी हमने डिस्कस किया था इफ डेल्टा एन 0 और एनी ऑफ दीज 3 कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो इन दैट केस, इन सेकेंड केस, डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू. यानी डेल्टा एच अगर 41 है तो डेल्टा यू भी 41 हो गया. दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन सेज अ स्विमर comes out from a pool, is covered with a film of water that weighs around 18 ग्राम. 18 ग्राम की लेयर बॉडी पे है. क्वेश्चन पूछा है आपको कितनी हीट देनी है टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, दैट मीन्स आपको बेसिकली यहां पे डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, कितनी हीट देनी है टू इवेपोरेट दिस टेम्परेचर, टू इवेपोरेट दिस वाटर एट दिस टेम्परेचर. Calculate internal energy of vaporization at 100 degrees Celsius, जिसमें आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन गिवन है 100 डिग्री पे 40.66 किलो जूल पर मोल. लेट अस डिस्कस हाउ दिस क्वेश्चन विल बी कैरिड आउट. सो क्वेश्चन हमने लिया, आपके पास वाटर है और आपको इसको कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में, मीन्स लिक्विड से आपको इसको कन्वर्ट करना है वेपर में. और कितना 1 मोल यानी 18 ग्राम है. 18 ग्राम से आपको यहाँ पे 18 ग्राम ही बनाने, इवेपोरेट पूरा 18 का 18 करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने में, मास अपॉन मोलर मास 18 होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 1 मोल. तो डेल्टा एन क्या हुआ, डेल्टा एन यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, बट इसका हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विड में विल काउंट ओनली फॉर गैस. सो 1 माइनस 0 डेल्टा एन कम्स आउट टू बी 1. डेल्टा एन आ गया. Now the question is delta U is equals to delta H minus delta nRT. डेल्टा H हमें पता है 40.66, डेल्टा N हमारा 1 अभी हमने कैलकुलेट किया. R इस किलो जूल पर मोल में लेंगे. सो अभी हमने डिस्कस किया था 8.314 इज जूल. सो इंटू 10⁻³ इज किलो जूल इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर. और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है सॉल्व करके. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है. इफ आई आस्क यू इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, you know bomb calorimeter which is used to calculate delta U. If volume is constant, next question है, volume is constant in bomb calorimeter, then क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे? If yes, why? If no, why not? So answer is these two will not be equal because the relation is delta H is equals to delta U plus P delta V. And it is applicable only when we have constant pressure. If we don't have constant pressure तो P delta V के साथ हमारे पास V delta P भी आ जाएगा. अगर डेल्टा P हमारा 0 नहीं है, मीन्स कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, तो हमें P डेल्टा V के साथ V डेल्टा V भी काउंट करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस लॉ डजंट होल्ड गुड. इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर. सो कांस्टेंट प्रेशर होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज, और वो भी कंडीशंस हमने पढ़ी थी.
Otherwise, in bomb calorimeter, if only volume is constant, these two will not be equal. Condition समझ में आ गई? Because this formula is applicable only at constant pressure. Clear? So this is how it takes place. So these are the questions based on enthalpy. Now one question based on heat capacity. We know that heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of any substance by 1 degree. तो कोई भी सब्सटेंस है, कितनी भी अमाउंट है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है टेम्परेचर, जितनी हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी है. अगर 1 मोल अमाउंट है तो उस हीट कैपेसिटी को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे. और 1 ग्राम अमाउंट है, then we call heat capacity as a specific heat capacity. So when we fix the mass, it becomes specific heat capacity. When we fix up the moles, it becomes molar heat capacity. And when we do not fix neither mass nor moles, then we call it as normal heat capacity. So we have a question based on this heat capacity. We are supposed to find the energy needed to raise the temperature of 10 gram of iron from 25 iron, let me write iron symbol, 25 degrees Celsius to 500 degrees Celsius. 25 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन पूछा है आपसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे मास फिक्स कर लिया और आपको एनर्जी निकालनी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन गिवन टू इज 0.45 जूल डिग्री सेल्सियस पर ग्राम. इसका मतलब क्या हुआ? हमें एनर्जी निकालनी है. एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में हो गया मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. समटाइम्स वी राइट इट एज एस ऑल्सो. सो दिस इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. सो आपको ये क्यू निकालना है. सो आपको पता है एम कितना है 10 ग्राम, आपको पता है सी कितना है 0.45, आपको पता है डेल्टा टी कितना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. डिफरेंस जब भी निकालेंगे केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस सेम होगा. सो इट्स सपोज टू राइट 500 माइनस 25, क्योंकि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आपको 25 को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर 500 को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. सो डिफरेंस वुड बी सेम आइदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन. सो दिस इज द फॉर्मूला. तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन गो विथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी.